myself Poonam Randad, and here we are back again at the Let's Lumidify. So अभी तक we have just founded the mathematical formulation for the quantum mechanics. अभी it's a time to use the mathematical foundation for some systems, and the first system for which we are dealing is nothing but the particle in a one dimensional box. So particle in a one dimensional box क्या चीज़ है कि एक कोई पार्टिकल है, उसको इस बॉक्स में रखा है, बट उस बॉक्स की कुछ स्पेशलिटीज़ है. वो समझने से पहले वी विल जस्ट लुक एट द स्क्रोडिंजर्स का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दैट इज डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर E minus V psi equal to 0. So usually when we deal with any system we use this equation only. Why? Because अगर time dependent iota h का dou psi by dou t वाला ये अगर concept ला लेंगे, time dependent वाले ला लेंगे, तो it is a tedious task to solve the second order differential equation. But when we deal with the time independent quantities, at the time it's really easy, or it is not that hard to solve the second order differential equation. So second order differential equation is in here on the board. तो आप अगर इसमें देख रहे हो, there is this energy and there is this V. So here V plays a major role. V plays a major role and also E. अब E के दो टाइप के कंसिडरेशंस होते हैं जब आप कोई भी स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते हो. यहाँ पे E माइनस वी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. E माइनस वी दैट इज एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, और एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा. अभी मैं आपको एक यहाँ पे हिंट देती हूँ. वन ऑफ दिस सिस्टम डील्स विद द क्लासिकल point of view and the another deals with the quantum point of view, and if you are understanding the quantum mechanics you would definitely answer this question. So please comment down the answer of this particular question what I've asked. So यहाँ पे E माइनस वी के बारे में नहीं बात करना चाह रही हूँ, मैं बात करना चाह रही हूँ इस पोटेंशियल की, दैट इज V. अभी जो स्क्रोडिंजर्स के ये जो टाइम डिपेंडेंट और ये टाइम इंडिपेंडेंट वाले सारे जो भी इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं किसी भी सिस्टम के लिए, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कभी 0 होगी, कभी एक कांस्टेंट पोटेंशियल V नॉट होगा, कभी kx हो सकता है, kx स्क्वायर हो सकता है, राइट. यानी ये पोटेंशियल कैन बी समटाइम्स 0, कैन बी द कांस्टेंट थिंग, कैन बी द kx, कैन बी द kx स्क्वायर. डिपेंडिंग अपॉन दिस वी विल बी एबल टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. उस वजह से आफ्टर यू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप सॉल्व कर लोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो अबाउट द सिस्टम. यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, बट दिस बॉक्स इज नॉट सिमेट्रिकल. दिस बॉक्स इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज असिमेट्रिकल. सबसे पहले कुछ कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे. दिस बॉक्स इज असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल यानी क्या कि एक पॉइंट के एक कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ 0 के दोनों साइड में सेम नहीं है. So that is the asymmetrical thing. So here this box starts from x equal to 0 and ends when x equal to a. This is not symmetrical, this is the asymmetrical. The length of this box, the length of the box is infinite. Length क्या है? Infinite है. And third is the potential, consideration of the potential V. अभी देखो, potential V will be infinity at the walls, and also at x equal to a it will also infinity, and in between the 0 to a potential will be 0. So how should I write the potential? V is 0 only when x is in between 0 to a. It is infinity when x is less than 0, you can see in here, and it is also infinity x is greater than a. इन तीनों केसेस में पोटेंशियल ऐसे लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचो, द पोटेंशियल एट द वॉल
is infinity, which means the walls are rigid. Whenever the walls are rigid, if there is one particle present in this box, then the particle will collide with the walls, and as a result it can't get out. It will just reflect back here, and again like this. Now we need to find out what is the nature of this particular particle. अभी और चीज़ें क्या पता करनी है कि अगर ये पार्टिकल इस 1D बॉक्स के अंदर, इस पूरे 1D बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कहाँ है, तो उसकी एनर्जी कैसी है, क्या है, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं. वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट. जो पता है उसको लेके अप्लाई करेंगे एंड विल सी क्या होगा. ठीक है, तो ये कुछ पहले के कंसिडरेशन से जो कि ले लिए और मैंने शॉर्ट में लिखे हैं. यू शुड राइट दिस ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द 1D बॉक्स इन द थ्योरेटिकल फॉर्म, जिससे आपको समझ में आ रहा है. इफ़ यू वांट the notes of this topic, then please comment down below. I will create a Google link and share it with you guys. So the considerations are, the particle is present in a box and that box is a symmetrical 1D box. The length of the box is infinite, and the potential at the walls of the box is infinite, which means at the x less than 0 and x greater than a, and it is 0 in between the box. So particle is present in here. Now quantum mechanically we need to find out where is this particle, where is the particle. यानी इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है. ठीक है, अब इसके लिए कैसे बढ़ेंगे, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को लेके. अभी बाय यूजिंग Schrodinger's time independent equation. What is the time independent equation? Dou 2 psi by dou x square plus 8 pi square m divided by h square e minus v psi equal to 0. अभी देखना पोटेंशियल, देखो यही देखो, पोटेंशियल when x is less than, when potential is infinity when x is less than 0. यानी इस पर्टिकुलर, इस वाले रिजाइम में, इस रिजाइम में you are clearly able to observe the potential is infinity, which means wave function psi of x will be 0. अब ये कैसे आया? You need to go to the first video and you should check the wave function का property. That wave function cannot be infinity. It should be continuous everywhere. And when the walls are rigid, at the time wave function is 0. यानी अगर किसी के साथ टकरा गया है वो पार्टिकल किसी रिजिड वॉल के साथ, तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा. एट द टाइम वेव फंक्शन विल बी 0. अभी नेक्स्ट जो है, अभी थोड़ा सा v इक्वल टू इन्फिनिटी है. कब? जब x इज ग्रेटर देन a हो. उसी टाइम पे साई ऑफ x विल बी ऑल्सो 0, क्योंकि वॉल्स कैसी है, इस वाले साइड में, इस साइड में रिजिड वॉल्स है, तो वेव फंक्शन फिर से 0 ना. अभी रीजन कौन सा बचा? रीजन बचा ये बीच वाला. उसके लिए देखते हैं क्या होगा. व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to a, व्हाट विल हैपन? v इज 0 मीन्स व्हाट? रख दो, वैल्यू रख दो, dou 2 psi by dou x square plus 8 pi square m divided by h square e minus 0 psi equal to 0. e minus 0 is e. अब अगर इसको देखेंगे तो दिस ऑल क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट वन. सो dou 2 psi by dou x square plus 8 pi square m by h square e psi equal to 0. So in this particular quantity, this whole quantity is the constant quantity, and we'll consider that it is equal to a square, that is dou 2 psi by dou x square plus k square psi equal to 0, where k square is what? 8 pi square m by h square e. This is k square. इसको यूज करेंगे, इसको भूलना नहीं है. ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? इन बिटवीन द 0 to x equal to 0 to a, in between that region. अभी देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में अपने को रिड्यूस करते आएगा. तो इसको कैसे करेंगे?
आप क्या करते हो, इसको रिड्यूस करते हो और m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हो। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखना है कि वी नो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस, by converting the second order differential equation into a quadratic equation। तो यहाँ पर क्या आ गए रूट्स, m इज इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा k। m इज इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा k कैसे आए, सोचो कि यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर आ गया, तो उस केस में आपके रूट्स क्या होते हैं, m इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा k। अब ये m की वैल्यू आ गई, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जा सकता है, साई ऑफ x ऑब्वियसली इज इक्वल टू some constant a sin this is k x plus another constant b cos k x। अभी आ गया, अब ये वेव फंक्शन आ गया, पर इसके साथ फ्री में अपने पास दो कांस्टेंट पे आ गए। दो कांस्टेंट ही क्यों है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, कहाँ से निकालेंगे, ये रहा ज्ञान, समझ आ रहा है। तो इसी वजह से लिखा था, सो विल यूज द बाउंड्री कंडीशंस, उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है, व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है, उस टाइम पे साई ऑफ x कितना है, 0। अब इसमें इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, x की जगह क्या डालना है, 0, x की जगह इस पर 0 डालेंगे, यानी साई ऑफ 0 एट द टाइम द वेव फंक्शन इज 0, तो ये 0 हो गया। a sin k into 0 is, this is also 0, plus b cos k into 0 is 0, which means cos 0 is 1, यानी 0 equal to 0 plus b, which implies b equal to 0। तो वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये वाला psi of x can be written as a sin kx प्लस b की वैल्यू क्या है, 0, फिर आगे का कुछ मैटर ही नहीं करता, सो इट इज a sin kx। नाउ दिस इज द वेव फंक्शन। अभी दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन बची है, व्हेन x इक्वल टू a एट द टाइम साई ऑफ x इज अगेन 0, सो जब x की वैल्यू a डालेंगे तो साई ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, सो 0 इक्वल टू a sin ka। नाउ अब मुझे बताओ, अगर इस वेव फंक्शन में a की वैल्यू 0 हो जाए तो वेव फंक्शन का कुछ मीनिंग होगा क्या, नहीं। तो अगर a sin k a 0 है, यानी a तो नॉन 0 होगा, तो sin k a शुड बी इक्वल टू 0, sin k a ही 0 होगा, तभी a sin k a 0 होगा। सो sin k a कब 0 होगा, जब k a n पाई के बराबर होगा। अब n कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, जब k a की वैल्यू 0 होगी, या फिर पाई, या फिर 2 पाई 3 पाई ऐसे होगी, तभी sin k a 0 होगा। अब k a की वैल्यू क्या आ गई, n पाई, यानी k इक्वल टू क्या है, n पाई बाई a। तो ऊपर का वेव फंक्शन कैसे लिखूं, ये वाला वेव फंक्शन, दैट इज साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन, ये k है, k को लिखेंगे क्या, नहीं, k की जगह n पाई x बाई a। दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल प्रेजेंट इन अ 1D बॉक्स। अभी ये तो आ गया वेव फंक्शन। अभी वेव फंक्शन करने से पहले विल जस्ट फाइंड आउट द एनर्जी आइगन वैल्यू। क्या निकालेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू। अभी एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालूं, पता है यहाँ k की वैल्यू क्या आई है, n पाई बाई a, और ऊपर k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ये वाला 8 पाई स्क्वायर m, इसको ले लेके उधर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ लेती हूँ जरा, तो ये क्या हुआ, k स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e। अभी k की वैल्यू क्या है, आई n पाई बाई a, यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e। अभी क्या आएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल, सेम सेम है, निकालना क्या है, एनर्जी e, बचा क्या, e इक्वल टू ये n स्क्वायर, एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m न्यूमरेटर में है, इसके स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 8m स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू। बट n कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3,
और ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू जीरो स्टेट यानी e इक्वल टू क्या आ रहा है, 0. इज दिस एग्जिस्ट? नहीं. दैट्स वाई इस केस में n इक्वल टू 0 केस नहीं लेते हैं. n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन. सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू. अगर इसको थोड़ा समझे, ये nth एनर्जी स्टेट है यानी En, दैट इज अगर n की वैल्यू 1 डालूं तो h² बाई 8ma² हो जाएगा. n की वैल्यू 2 डालूं तो 2 का स्क्वायर h² बाई 8ma², यानी ये क्या है, E1, यानी ये 2 स्क्वायर 4 E1 हुआ. वैसे ही E3 क्या है, 3 का स्क्वायर E1 विच इज इक्वल टू 9 E1. E4 क्या हुआ, 4 का स्क्वायर E1 यानी 16 E1. अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, दिस n इज द नंबर ऑफ स्टेट प्रेजेंट इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स. अगर मैं इसको विजुअलाइज करवाऊँ तुम लोगों को, सो ये कैसे होगा, एक सेकेंड. अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊँ तो ये अगर एक बॉक्स है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a का, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 नंबर का एक स्टेट है, ठीक है, जो कि एनर्जी उसका इतना है. अब E2 और इसमें कितना फर्क है, 3 E1 का. इन दोनों में कितना है, 5 E1 का. इन दोनों में कितना है, 16 माइनस 9 इज आई थिंक 7 E1. तो हर गैप के अंदर 2e का इंक्रीमेंट है, यानी हर स्टेट कुछ इस तरीके से n इक्वल टू 1 हो गई, इसमें 2e का इंक्रीमेंट हुआ, n इक्वल टू 2. वैसे ही यहाँ पे n इक्वल टू 3 आएगी, 2e का इंक्रीमेंट, यहाँ पे n इक्वल टू 4. सो ईच एनर्जी स्टेट के अंदर 2 E1 का डिफरेंस है, एंड ईच एनर्जी स्टेट हैव इट्स discrete value. So here comes again the discreteness of energy. So when we are dealing with the system particle in a one dimensional box, at a time you can clearly observe the energy is discrete. Am I right? So अभी थोड़ा सा देखते हैं वेव फंक्शन की तरफ, ये psi of x की तरफ. ये हो गया एनर्जी आइगन वैल्यू के बारे में. So now अभी थोड़ा वेव फंक्शन क्या आया था, वेव फंक्शन क्या आया था देखते हैं. वेव फंक्शन आया था psi of x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a sin n pi x by a. फॉर n इक्वल टू 1 आप psi x को क्या लिखोगे, a sin pi x by a लिखोगे. Am I right? तो और n इक्वल टू 2 को क्या लिखोगे, psi of x इज इक्वल टू a sin 2 pi x by a. बट यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालो, लेट्स जस्ट यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. क्या बोल रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन टू कैलकुलेट a. अब ये क्या होती है, कभी भी आपको इस वेव फंक्शन के पहले का अगर कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो यू विल यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. वो क्या आता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1. अगर ये साई स्टार साई अगर याद आ रहा है किसी को, तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अगर मुझे किसी स्पेस के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का स्पेस कंसिडर कर रही हूँ, उसके अंदर मैं अगर देखूँ तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल के मिलने की कितनी होगी, 1. वही केस यूज करेंगे. बट इस केस के अंदर जो वेव फंक्शन है, जो psi of x है, ये ओनली एलिजिबल है व्हेन x इज इन बिटवीन 0 से a तक. तो यहाँ पे व्हेन द वेव फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे वेव फंक्शन तो 0 हो गया, प्लस 0 से a में वेव फंक्शन है dx, प्लस a से इन्फिनिटी में वेव फंक्शन अगेन 0 हो गया. सो दैट विल बी इक्वल टू 1. अभी बताओ 0 से a के बीच में psi स्टार क्या है, psi इज दिस. अब ये रियल क्वांटिटी है, बट a रियल है या इमेजिनरी नहीं पता. इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, दैट इज a स्टार साइन. अभी psi n लेने के बजाय आई एम डीलिंग विथ n इक्वल टू 1 वाला केस. a स्टार साइन पाई x बाई a इंटू psi of x क्या है, ये रहा a साइन पाई x बाई a dx इज इक्वल टू 1. अभी साई स्टार है, साई स्टार क्यों नहीं लिया यहाँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर i होता तो माइनस i में कन्वर्ट हो जाता. यहाँ पे है क्या, वैसा कुछ नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस. सो 0 टू a mod of a स्क्वायर साइन स्क्वायर
पाई एक्स बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। निकालना क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर, 0 to a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए डी एक्स। अभी साइन स्क्वायर है, इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं। साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई 2। मैं इसे लिख सकती हूँ, इट इज अ डबल एंगल फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हो। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, अब 1/2 है तो इधर निकाल लेती हूँ, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यह क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ए इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, दैट इज माइनस साइन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज प्लस का साइन ओनली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, सो कॉस साइन 2 पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, एंड लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से a इज इक्वल टू 1। अभी बताओ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह क्या लिखना है, a माइनस साइन 2 पाई बाई a, और a लिख दो, a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, माइनस x की जगह 0 लिखना है तो यहाँ 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 0 इज ऑलवेज 0 विच इज इक्वल टू 1। सो ये क्या आया, a स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई a, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू रूट 2 बाई a। दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a। अब इसको पुट कर दो, साई ऑफ x इक्वल टू रूट 2 बाई a साइन n पाई x बाई a, where n starts from 1, 2, 3, 4 up to so on। ये हो गया nth ऑर्डर वेव फंक्शन। अगर मैं बोलूँ मेरा जो पार्टिकल है n इक्वल टू 1 स्टेट में है तो उसके लिए वेव फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगी, साइन पाई एक्स बाई ए ऐसे लिख पाऊंगी। अगर n इक्वल टू 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो रूट 2 बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए। n इक्वल टू 3 के बारे में बात करेंगे तो साइन 3 ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 2 बाई ए साइन 3 पाई एक्स बाई ए। ऐसे ही आप इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ वेव फंक्शन निकाल सकते हैं और ईच स्टेट के साथ जो गैप है, एनर्जी गैप, वो 2e1 का बढ़ते जा रहा है। अगर मैं वेव फंक्शन वर्सेस द पोजीशन वाला ग्राफ निकालना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स ले लूँ और यहाँ x ले लूँ, तो अगर ये n इक्वल टू 1 स्टेट हो तो उसके अंदर वेव फंक्शन का नेचर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये n इक्वल टू 2 स्टेट है तो इसके अंदर वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये n इक्वल टू 3 स्टेट है तो आपको वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ वेव फंक्शंस फॉर वेरियस स्टेट्स। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी आइगन वैल्यू, तो आपको यहाँ तक लिखना है। अगर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको वेव फंक्शन निकालना है तो आपको वेव फंक्शन लिखना है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे की तरफ, ये यहाँ वाला जो है ना, इसके तरफ जंप कर सकते हो एंड यू कैन ईजीली कैलकुलेट दिस ग्राफ। यहाँ ये ग्राफ निकाल के आप लोग को एंड करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।